Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Hope you all are doing fine, and thank you for thanks to all the participants who are patiently waiting for this session because previously it was planned on 7 p.m. to 8 p.m. But due to my late arrival from flight, actually I was traveling from Bhubaneswar to Chennai, so as my flight got delayed, my everything plan got delayed, so that's why I'm keeping the session by 8 to 9. So I'm sorry for the lateness, as it was definitely not on my hands. Yes, thank you so much for all your patience and cooperation. Sorry to interrupt, sir. Sir, kindly wait for only 2 or 4 minutes. Yeah, So sure. another person is want to join. Yeah, sure. Okay. So kindly let me know so that I can start with it. रामानंद भाई, आपका कैमरा ऑन है। Sir, you can start, sir. Venkatesh, sir. Yeah, okay. Yeah, sure. Thank you. Thanks for the confirmation. Hope my voice is really audible to everybody. So if it is audible, just give me a thumbs up, rise up, so that I can get to know. As I can get to know that all are being muted. So just give me press Control Shift K so that I'll get to know. Yeah, that's it. Thank you. Thank you so much. So this particular session is kind of uh, very basic training session on first aid. So let us not waste more time on this. Just inside. So first of all, thank you so much, Rajkumarji, for this wonderful session because I personally feel that the first aid training is a must for all kinds of HSC personnel as well as for any of the employees who are working in any kind of work. So, first and foremost thing is the introduction part. So, let me introduce myself. My name is Venkatesh. I'm a certified fast rider. I'm acting as an HSC consultant, and I'm also an acupuncture healer. So, and along with that, first aiding and treatment, I can do treatments also with respect to any of the diseases. I mean, through acupuncture mode, so that also I can do.
So this particular session is for Google Institute of Fire Safety and Engineering. And so this would be the replay. So enough with the introductions. Thank you so much. First of all, I would like to ask each and every one of you why you can tell a first aid is required. Can you just put all your thoughts as a chat in the chat box? Sorry Venkatesh sir, Why do you sorry to feel? interrupt. सर मेरी आवाज आ रही है वेंकटेश सर? जी जी सर वो Yeah, बीच बीच में थोड़ी हिंदी भी यूज कीजिएगा. आई थिंक फॉर बेटर फॉर ए स्टूडेंट. some okay, persons sure, are sure. not okay. जी जी समझता हूँ Okay. समझ लेता हूँ, नो इश्यूज. मैं हिंदी Thank भी you. बात कर लेता हूँ. जी जी. तो स्लाइड मोड में रख लेता हूँ. आप ये बताइए कि सबसे पहले फर्स्ट एड क्यों चाहिए? कैन यू एक्सप्रेस इन चैट प्लीज? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस इन चैट. सर कोशिश I think करेंगे. Rajkumar ji, these guys can chat in the chat box, right? Rajkumar ji? Yes sir, open to all sir. Yeah. So I Open asked, to all. मैं सभी से पूछ रहा हूँ, आप अपना लैंग्वेज में अगर बताना चाहते हैं वो भी नो इश्यूज है, मगर आप बताइए कि आपके तरफ से फर्स्ट एड का जरूरी क्या है. पहले वो आप बोलना है. अच्छा, मिस्टर रुद्र दुबे ने बोला है कि फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी. ओके, दैट इज गुड. Any other particular reason? I want everybody to participate to express their opinion. अब ये कोई एक चैट बॉक्स है, आपका जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं इस पे. आपने आपको का सेफ्टी रखना. ओके, वो भी बहुत अच्छा है. एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो ट्रू. बिकॉज 80% सेव लाइफ. यस, दैट इज काइंड ऑफ अ थंब रूल. ये एक थंब रूल है फर्स्ट एड का. पहले आप अगर कर लेंगे तो मेजर ट्रीटमेंट से पहले आप बराबर फर्स्ट एड कर लेंगे. सो ए सक्सेसफुल फर्स्ट एड 80% ऑफ लाइफ को बचा देगा. So that is the thumb rule, not a generic rule. It's a thumb rule. Yes, sir. Everyone can use the chat. Yeah. Only camera is disabled. All others can use the chat, please. Only 3 लोग ही उनके comments. Okay, so no issues. Moving on. So major यहाँ पे ये है कि the first and foremost thing is immediate care. Immediate care, because ये चीज थोड़ा highlight करना चाहता हूँ. So what is meant by this immediate care? सबसे पहले immediate care मतलब, मानिए अगर कोई आपके नजर में कोई ऐसे इलेक्ट्रोक्यूट हो रहे हैं या बर्न्स ले रहे हैं या चोक हो रहे हैं या हार्ट अटैक में एंगेज हो रहे हैं. सो एज ए ट्रे आप, अगर आपको फर्स्ट एड उनको आई मीन आपको बराबर अगर मालूम है, तो व्हाट यू कैन डू इज, किसी के लिए वेट करना नहीं चाहते हैं, दैट यू कैन डू एंड इमीडिएटली यू कैन अटेंड टू देम, यू कैन सेव देम. तो कब तक इसको करना है? जब तक प्रोफेशनल जो मेडिकल टीम है उन लोग आने समय तक. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये हमारा जिंदगी को बचाता है. हमारा नहीं, दूसरों का, किसी का भी जिंदगी बचता है इनकी वजह से. एंड नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बट ऑल्सो जो भी बुरा हालत ना होने की वजह से ये रुकता भी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए कोई अगर बिल्डिंग डेमोलिश हो गया, तो बिल्डिंग डेमोलिश हुआ तो अंदर में बीच में बहुत सारा आदमी फंस सकते हैं, है? उन लोग ना निकल पाएंगे, ऐसे आधे आधे फंस तो सकते हैं उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर. दे कैन बी ट्रैप्ड इनसाइड. तो उन लोगों को बचाते समय दे माइट हैव बीन फ्रैक्चर अंदर में. तो उन लोगों को बचाने में जो तरीका इस्तेमाल करना है उसी तरीके से ही उनको बचाना होगा. और अगर ये पता नहीं है तो उनको खींच खींच के उनको निकालने के लिए कोशिश की, द सिचुएशन विल वर्सन अप. So that is the kind of situation. So it prevents condition from worsening.
जिनको जो बराबर पता है उनके वजह से ये सही कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट प्रमोट्स क्विक रिकवरी। तो यहाँ पे मैंने क्विक ऐड नहीं किया बिकॉज यहाँ पे रिकवरी होने से कुछ लोगों का रिकवरी स्लो प्रोसेस भी होगा, कुछ लोगों का रिकवरी जल्दी भी हो सकता है। एंड बेस्ड ऑन दैट द मोड ऑफ फर्स्ट एड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, और उसके हिसाब से किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इन सारे को मिला के ही रिकवरी के बारे में हम बात कर सकते हैं। सो दैट ये जल्दी भी हो सकता है एंड स्लो भी हो सकता है, बट डेफिनेटली रिकवरी प्रमोट होगा फर्स्ट एड करने से। इवन बिफोर द ट्रीटमेंट ऑल्सो रिकवरी कैन स्टार्ट। तो वही यहाँ पे बात बोला। सो होप द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इज मेंशन्ड हियर एंड आई होप ये सभी को क्लियर है। मूविंग ऑन, सबसे पहले फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें फर्स्ट एड के बारे में क्यों चाहिए, उन सबका इम्पोर्टेंस किसके लिए है, ये सभी तो बात होगी। अभी एक चीज आएगा कि सबसे पहले उनके ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पे मेजरली 3 ही ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट एड के हिसाब से। फर्स्ट वन, प्रिजर्व लाइफ। किसी हालत से भी, किसी स्थिति में भी जान नहीं जाना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नो पर्सन शुड डाई। तो किसी को भी किसी हालत से भी इसको बचाना चाहिए, और बचा के उनको जिंदा रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। सेकेंड जो है, प्रिवेंट फर्दर हार्म। एक बार उनको ऐसे अगर कोई आ, उनके हालत कुछ खराब हो गया, फर्स्ट एड देना था, फर्स्ट एड देने के बाद में और हालत खराब नहीं होगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मानिए अगर एक बार फर्स्ट एड दे दिया, फर्स्ट एड देने के बाद भी अगर बुरा हो रहा है, देन जो फर्स्ट एड दिया है वो सक्सेसफुल फर्स्ट एड नहीं है। तो दीज आर ऑल सेकेंडरी कंडीशंस, मगर सबसे पहले जो है प्रिवेंट फर्दर। सो ऑब्जेक्टिव में सेकेंड ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी बुरा हालत ना होना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट प्रमोट्स टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों है मेजरली ऑब्जेक्टिव्स का है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि डेफिनेटली इसको अटेंड करेगा फर्स्ट एड। तो ऑब्जेक्टिव मतलब है कि एक फर्स्ट एड अगर करेंगे, ये तीनों डेफिनेटली विल बी अटेंडेड, ये बराबर इसको हो ही जाएगा एक बराबर फर्स्ट एड करने की वजह से। तो अगर इन तीनों में बराबर नहीं है तो फर्स्ट एड इधर फेल हो सकता है ना। इट नॉट ऑलवेज बी द केस, हर बार ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि पेशेंट जो अटेंडर एक है, जो फर्स्ट एडर जो बोलते हैं वो जो फर्स्ट एड देगा, और नेक्स्ट जो है रिसीवर, जो रिसीवर के आदमी है उनके भी शरीर के हिसाब से ही ये फर्स्ट एड के प्रमोशन और रिकवरी डिसाइड भी होता है। सो देर आर dilemma cases also in this particular condition. So not only that every first aid will be successful, आपका हर फर्स्ट एड सक्सेसफुल होगा करके यकीन नहीं है, बट फिर भी रिसीवर को बचाना बहुत जरूरी है। तो उनकी वजह से हम ये सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड दे रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहले जो फर्स्ट एड देगा वो कैसे रहना है, यू शुड स्टे काम। मानिए अगर एक आदमी को शोक हो रहा है, तो होते हुए आदमी को अगर देख के, अयो आप चोक हो रहे हैं, अभी आप कुछ नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसे अगर आप बोलेंगे ना, तो जो आदमी चोक होता है वो सुनते ही मर जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फर्स्ट एडर, आपको पहले आपके इमोशंस को कंट्रोल रखना जरूरी है। तो whichever your empathy, whichever your emotions are, आपके सुख हो दुख हो, you might have been depressed already, or you might be very happy, you might have been angry over a call with your home, है ना। आपका मूड कैसे भी रहने दें, मगर आप अगर एक फर्स्ट एड बन गए हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू डू फर्स्ट एड, यू शुड बी वेरी काम, एंड स्टेइंग काम इज नॉट द लीस्ट पार्ट, है ना। वो छोटी बात नहीं है, बिकॉज किस हालत में आप फर्स्ट एड करना चाहेंगे वो असेस करना फर्स्ट एड का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है, वो देखना बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन। सेकंड थिंग विल बी चेक फॉर सेफ्टी। अच्छा, दिस इन्वॉल्व्स, ये सुरक्षित ही बोलने से
किसी का भी हो सकता है। मगर यहाँ पे जो बात किया जाएगा वो है पहले जो फर्स्ट एडर है उनके भी सेफ्टी होना चाहिए एंड द रिसीवर ऑल्सो और द विक्टिम। फर्स्ट एडर को कभी कभी रेस्पॉन्डर करके भी बोल सकते हैं, फर्स्ट एडर रेस्पॉन्डर है ना, इमरजेंसी रेस्पॉन्डर किसी को भी बोल सकते हैं, राइट। सो इधर विक्टिम को भी बोल सकते हैं या फर्स्ट एडर को भी बोल सकते हैं या अन्य लोगों को उनके पास में होगा उनका भी बोल सकते हैं। सो इट शुड द एरिया पर्टिकुलरली वेयर द फर्स्ट एड टू बी कैरिड आउट, जिस जगह पे जो फर्स्ट एड करना जाएगा वो एरिया सुरक्षित है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। कैसे? इसको बताने के लिए कोई किसी इंजीनियर का जरूरी नहीं है ना। कोई वहां पे जैसे भी हालत कैसा है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल अगर रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तो हम रोड के बीच में रख के कोई फर्स्ट एड तो नहीं करवाएंगे, राइट। उनको जिनको जो विक्टिम है उनको साइड में लिया जाएगा, साइड में लिया जाके एक शेल्टर में रख के और थोड़ा सभी आदमी से दूरी बना के हवा मारते हुए है ना, थोड़ा पानी पिला के एम्बुलेंस भी आता जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल चीज है, जनरल साइंस ही है, जनरल नॉलेज ही है, इसमें कोई अप्लाइड साइंस वगैरह नहीं है, मगर सिंपली उसको आराम से उस समय सोच के काम करना है ऐसा फर्स्ट एड। बिकॉज बाकी बहुत लोग वहां पे हो सकते हैं दैट कैन डिस्ट्रैक्ट द पीपल। मानिए अगर कोई इंसिडेंट हो जाएगा है ना किसी वजह से भी, या कोई फर्स्ट एड देने जैसे या कोई बड़ा इंसिडेंट जैसे कुछ हो गया, तो डेफिनेटली वहां पे एक आदमी वो जो विक्टिम है वो ही रहेगा बोल के है ही नहीं। वहां पे बिल्कुल से बिल्कुल सारा बड़ा एक भीड़ रहे, राइट। भीड़ वाले इतना बड़ा भीड़ में एक एक आदमी अपने ओपिनियन एक एक तरफ से बोलता है, राइट। तो उसी समय किसी हालत से भी आप अपना इमोशंस को कंट्रोल छोड़ के ना जाना है, विच कुड कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी ऑफ यू एज वेल एज द दैट इज नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगली बात, कॉल फॉर हेल्प। जब आप फर्स्ट एड चलता ही रहेंगे, आप फर्स्ट एड अगर देने लगेंगे, तो आप ऐसे ना सोचना है कि आप एक आदमी के पूरे एफर्ट के वजह से वो आदमी बच जाएगा, ऐसे कभी भी मत सोचिए। दैट इज काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड है ना। वो किससे पास देख सकते हैं कि लाइक इन केस ऑफ एन एक्सपर्ट एंड एन एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट एडर, तो कभी कभी जो एक 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस अनुभव वाले कोई फर्स्ट एडर हो सकता है, उनको मन में कभी कभी ऐसे लग जाता है कि मैं खुद उनको बचा लूंगा, कोई डॉक्टर के जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ द बिलीफ ओवर इज ट्रीटमेंट, बिलीफ ओवर इज फर्स्ट एड। मगर कभी कभी ऐसे सोचना नेगेटिव रिजल्ट्स दे देता है, okay? तो आप कभी भी मेडिकल प्रोफेशनल मेडिकल आदमियों को हेल्प लेना आप सोचना भी नहीं है, आई मीन डाउट ही नहीं करना है, डेफिनेटली आपने कॉल करना है, यू शुड कॉल फॉर हेल्प विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल प्रोफेशनल्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोवाइड केयर। आप फर्स्ट एडर इसलिए बने हैं कि बाकी लोगों को सहायता करके उनको बचाएं, राइट। तो वो सहायता किस तरीके से करें वो आप आपने पढ़े होंगे प्रैक्टिकल सेशन पे या ऐसे क्लासेस में पढ़े होंगे, तो उसको आपने प्रयोग करके एक आदमी को बचाना होगा, एक आदमी या 2-3 आदमी जितने भी आदमी हैं, जिनको ट्राइए जिन जिनको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उन सबको आपने बचाना बहुत बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, विच एवर द थिंग एथिकली आपने जो पढ़े हैं उसको आपने फॉलो नहीं किया है, तो आपके जो एजुकेशनल एथिक्स जो है वो पूरे बिगड़ गए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एंड इट इज नॉट ह्यूमैनिटी ऑल्सो, हम सभी इंसान तो है, सो इंसानियत को बचाना जरूरी होता है किसी का भी, जो फर्स्ट एडर हो या फर्स्ट एडर नहीं हो, किसी को भी हमने बचाना जरूरी है। तो अगर आपने फर्स्ट एडर का बना दिया तो डेफिनेटली आपने बचाना है। सो दीज आर द 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल है, राइट। सबसे पहले जो ये स्टेप्स हमने इसीलिए रखा है इन द सेंस बेस्ड ऑन द एफर्ट, बेस्ड ऑन एफर्ट, एफर्ट के मैक्सिमिसिटी वजह से ये 4 स्टेप्स हमने लिखा है। सो व्हाट डज दैट मीन, अगर ऐसे में बोलूंगा तो क्या काम में आपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, बिकॉज आप एक बार फर्स्ट एडर के लिए पढ़ लिया है ना, फर्स्ट एडर के लिए प्रैक्टिकल सेशन ले लिया, तो आपको कोई आदमी बोलना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ विक्टिम, कोई अगर नीचे पड़ा है
आपको कोई बोलना नहीं है, आप खुद जाके जो करना है कर लेंगे, डेफिनेटली एवरीबडी विल डू। तो उस समय कोई आपको नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है करके कोई बोलना जरूरी नहीं है। यू विल नो, आपको पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। सो द लास्ट स्टेप इज हैविंग ओनली द लीस्ट, आई मीन मिनिमम एफर्ट देने से हो जाएगा वो। मगर द मोर एफर्ट आपको किस में देना है, द फर्स्ट वन, दैट इज स्टेइंग काम, और आपके सिचुएशन को एसेस करना। उसी में ही बहुत ज्यादा फर्स्ट एडर्स भी गलती करते हैं। जो जो नया फर्स्ट एडर्स बनते हैं उन लोग क्या कर लेते हैं, जो उनके विक्टिम के पास में जितना भीड़ होगा, उस भीड़ के कमेंट की वजह से उन लोग एक्ट करना शुरू कर लेंगे। दे विल बिहेव लाइक दे आर ऑल्सो ए कॉमन person from the group instead of a first aider. Okay? Because मैं ये एक आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो इसी पे। क्या हुआ, एक साइट हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। ओके, तो उस साइड पे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते समय ही एक स्कैफोल्डिंग गिर गया था। ओके, तो गिरते समय वहाँ पे एक आदमी का पैर में थोड़ा फिसल गया। अच्छा हुआ था, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एलटीआई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, बट ही गॉट ट्रिप्ड आउट और उनके क्रैम्प्स या ऐसे कोई पैर में कोई लग गया, सो ही वाज अनेबल टू वॉक। तो ऐसे ये जब इनको हमको पता चला कि उनको फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, जब हमने एक्सरे वगैरह की तब भी पता चला था, राइट। मगर करने से पहले साइड में लोगों ने क्या बोला था, अरे इनको तो फ्रैक्चर ही हो गया, ये तो अभी चल नहीं पाएगा, इनका पैर को काटना है ना, इनका पैर यूजलेस है, ये अभी चल नहीं पाएगा, इनको कॉम्पनसेशन देना है। ऐसे ऐसे भीड़ वाले बहुत इतना सारे बात करने लगे हैं। फर्स्ट एडर टोटली फॉरगॉट हाउ दैट पर्सन शुड बी टेकन अवे। मानिए अगर किसी को पैर में चोट लग गया है ना, जैसे फ्रैक्चर या कोई डाउट लग रहा है कि फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो व्हाट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, स्ट्रेचर ले आना है, उनको इधर स्ट्रेचर ले आना है या हमारा व्हील चेयर ले आना है, उनको इधर बिठाना है या यू शुड लाई डाउन, राइट। उसके बाद में पैर ना हिलाना है, उनको सपोर्ट दे के ना हिलाने की वजह से उनको ले जाना है। बट व्हाट हैपेंड इज द फर्स्ट एडर ही गॉट द अदर पर्सन जिनको जो चोट हुआ है उनको पैदल ले गया। So the first aider entirely forgot what his role was, or he also became one of a person from the crowd, saying and doing all the things. So first and foremost thing, this is one of the best example. ये ऐसे ही होगा करके मैं नहीं बता रहा हूँ, मगर ऐसे भी हो सकता है। So that is the most important thing. Next will be the ABCs of the first aid. तो क्या है ये ABC? तो ABC मतलब वेरी सिंपल है, बेसिक्स है ना, स्टार्टिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये, एयरवे, इंश्योर द एयरवे इज क्लियर। ये एयरवे मतलब है कि आप हमेशा सीपीआर करते समय जो हवा देते हैं उनके मुंह में, वो नहीं है, वो भी हो सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भाई विक्टिमाइज हो सकते हैं, उनके आसपास हवा आना है, बाहर के हवा। मान लीजिए उनके पूरा एक भीड़ उनके ऊपर पूरा बैठा है, सो व्हाट हैपेंस इज पूरे आदमी का कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जमा हो सकता है, एंड दैट विल कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टी। एंड जो विक्टिम है उनके केस और भी खराब होने का चांसेस भी होता है, बिकॉज ही विल नॉट हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन, है ना। श्वास लेने का जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगा भीड़ रहने से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एयरवे शुड बी क्लियर। सेकेंड थिंग, योर ब्रीदिंग। मानिए इनके ब्रीदिंग पैटर्न को आप देखना जरूरी है। तो ये क्या है ब्रीदिंग पैटर्न? ब्रीदिंग पैटर्न बोलने से नॉर्मली एक आदमी ने ब्रीदिंग पैटर्न लेगा 60 to 72 ब्रेथ्स पर मिनट, तो सॉरी 12 ब्रेथ्स पर मिनट। तो इस ब्रेथ्स में तो क्या होगा, हमेशा के लिए सेम रिदमिक पैटर्न में रहेगा बोल के हम नहीं बोल सकते। तो व्हाट हैपेंस इज इन केस ऑफ अ पैनिक, तो हार्ट बीट बढ़ेगा। हार्ट बीट बढ़ने की वजह से इनका मोर अमाउंट ऑफ एयर इनटेक होगा, तो ब्रीदिंग के पैटर्न डिफर होता है, टाइमिंग डिफर होता है, और नंबर ऑफ ब्रेथ्स भी ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, राइट। मोस्टली ज्यादा ही होगा, कम कब होगा, व्हेन द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस, है ना।
तो अगर डाइल्यूट हो गया तभी उनको उनके ब्रीदिंग पैटर्न्स में लो आ सकते हैं, वरना मोस्टली हाई। तो वो ब्रीदिंग पैटर्न हमने चेक करना है, बिकॉज हमारे फर्स्ट एड में ब्रीदिंग एफर्ट अगर ज्यादा होगा तो एक तरफ का ट्रीटमेंट देना चाहिए, ब्रीदिंग एफर्ट अगर कम हो गया ब्रीदिंग पैटर्न तो उनके लिए दूसरा कई इफेक्ट है। तो दोनों के एक ही इफेक्ट नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है सर्कुलेशन, तो ये मोस्टली ब्लड सर्कुलेशन का ही दिखाता है ना। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे आपको पता चलेगा? यू शुड मेजर द पल्स। तो पल्स देखने के लिए वी हैव मेनी लोकेशंस ऑन ह्यूमन बॉडी। आप एक्यूपंक्चर में अगर देखेंगे, आई मीन फिजियोथेरेपी के वजह से अगर देखेंगे फिजियोलॉजिकली, देन आपके शरीर में मोर देन लाइक 22 पल्स पॉइंट्स आते हैं, 22 पल्स पॉइंट्स आते हैं। मगर एक्यूपंक्चर हिसाब से अगर देखेंगे तो सो यू हैव लाइक मोर देन 500 प्लस पल्स पॉइंट्स आते हैं इनसाइड द बॉडी, 500 प्लस। तो आपको कौन सा नर्व, कौन सा मसल, कौन से जगह पे नर्व चल रहा है, सब चीज वहां वहां पे चल रहा है। सो एटलीस्ट यू शुड नो एटलीस्ट एनी ऑफ द नर्व पल्सिंग पॉइंट, सो दैट पल्स चल रहा है कि नहीं है बराबर आप चेक कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ पल्स? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पल्स क्या होता है? whenever blood passes through one particular portion of a nerve, so that particular nerve got pushed away, नर्व वॉल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होके कम होता है। सो वही हम पल्स जैसे मेजर करते हैं। हाउ मच टाइम आप वो पल्स जो है आपके हार्ट बीट के बीटिंग के वजह से होता है, हार्ट जितना धड़कता है उसके हिसाब से वहां पे पल्स होगा, राइट। सो पल्स अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके खून जो है हर जगह पे, बॉडी के हर जगह पे जा रहा है। तो इट इंश्योर्स योर एंटायर ब्लड सर्कुलेशन। तो आपके मेजर फर्स्ट एड का एबीसी ये है कि सबसे पहले हवा क्लियर रखना है। सेकेंड थिंग इज, जो आदमी विक्टिमाइज है वो बराबर श्वास ले रहा है या नहीं है वो चेक करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लड सर्कुलेशन है या नहीं है, पल्स मेजर करना है। So that is, these are the ABCs of the first aid. Next, so before I start this, I want you guys to say, आप थोड़ा चैट बॉक्स में लगाइए कि कॉमन फर्स्ट एड सिचुएशंस क्या क्या है। कैन यू टेल मी इन द चैट? आप थोड़ा चैट में लगा सकते हैं क्या क्या सिचुएशन है कि हम फर्स्ट एड मान सकते हैं, फर्स्ट एड देना जरूरी है। प्लीज टेक योर टाइम, बट थोड़ा जल्दी रिटाइप कर लीजिए आपका चैट में। Shank bite. I think is it snake bite? I think so. Yes. हाथ में कट लगाने जैसे, yes, cut or burn injuries, yes, a snake bite or any kind of insect bite, है ना, right? या कोई हाइट से गिर गया है ना, फ्रॉम फॉल फ्रॉम हाइट, राइट, तो किसी का भी ये दे सकते हैं। कट एंड बर्न इंजरी, यस, गुड वन। सर माता काट जाने से, कैन यू एक्सप्लेन सर, मिस्टर सीताराम परमाने? आई डिडंट गेट योर पॉइंट, मैं समझा नहीं हूँ आपके पॉइंट। सर बोलो कि अगर माथा में चोट लग गया, अगर माथा से ब्लीडिंग हो मतलब शुरू हो गया तो उसमें तो फर्स्ट एड देना पड़ेगा हॉस्पिटल से हाँ, जाने से यस, पहले तक। श्योर श्योर जी, श्योर जी, सही बोल रहे हैं, सही बोल। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। पिटूषा, पिटूषा जी कोई टाइप कर रहा है। अच्छा, चोट होगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, है ना, डेफिनेटली होगा। मगर ये एक कॉमन फर्स्ट एड सिचुएशन है करके WHO हैज रिकमेंडेड। ये सभी जो स्थिति है इन सभी को हमने ध्यान में रखना जरूरी है करके
WHO has recommended these common things. क्या है? सबसे पहले ब्लीडिंग, काटना, चोटना, स्क्रैच होना, swell होने की वजह से खून बाहर आएगा, तो all these situations will be considered as bleeding. नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है बर्न्स. ये बर्न्स किसी के वजह से भी हो सकता है. इधर इट कैन बी लाइक फायर बर्न, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल बर्न, इट कैन बी केमिकल बर्न, या इट कैन बी लाइक एनी मेटल प्रोसेसिंग बर्न, है ना. तो और ये बर्न्स में भी उनके डिग्रीज हो सकता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री. हाँ, तो इन सभी किसी वजह से भी बर्न्स अगर अफेक्टेड है, तो एवरीथिंग विल कम अंडर दिस. नेक्स्ट विल बी फ्रैक्चर्स. तो फ्रैक्चर्स मतलब है कि हमारे शरीर में कितने भी बोन्स है, किसी एक भी अगर माइक्रो क्रैक भी होगा ना, सो माइक्रो क्रैक, माइक्रो क्रैक्स, इवन माइक्रो फ्रैक्चर्स जितने भी होगा, तो एवरीथिंग विल कम अंडर फ्रैक्चर्स. नेक्स्ट जो चोकिंग. चोकिंग हमने बहुत सारे सीरियसनेस नहीं देते हैं यूजुअली इंडिया पे, है ना. बट चोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेवास्टेटिंग इफेक्ट दे देता है चोकिंग. तो वो क्या है चोकिंग, उन सबको क्या करना है, वो एक अलग से एक फर्स्ट एडिंग थेरेपी है उसका, सो दैट विल आल्सो विल सी. नेक्स्ट जो है स्ट्रोक. स्ट्रोक मतलब क्या है? सो यू गाइस डेफिनेटली नो. स्ट्रोक मतलब आपका ब्रेन में जो जाने वाले ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा, तो दैट कॉजेस पैरालिसिस ऑन योर बॉडी, और उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक, राइट. तो उस वो अगर होगा तो उस समय क्या करना है, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, नॉट बट नॉट लीस्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, है ना. हम बोलते हैं हार्ट अटैक. हार्ट अटैक के समय भी क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताना होगा. सो these six are being considered as a common first aid situations, है ना. तो अगर कॉमन हो गया, तो ये किसी को भी, किसी आदमी को भी कभी भी हो सकता है. सो दैट इज व्हाई these are being meant as common. These are like, ये कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, इनके फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, राइट. मानिए आप अगर रोड में जा रहे हैं, तो किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया, तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, राइट. तो बोथ कैन हैपन, राइट. इन केस ऑफ हेवी ब्लीडिंग तो स्ट्रोक भी आ सकता है. अगर किसी को इलेक्ट्रिकल पैनल में काम करते हुए कोई आर्क फ्लैश होके शॉक लग गया, तो बर्न आ सकता है ना. खाना खा सकते समय, खाना खा सकते समय क्या हो सकता है, इधर बातचीत करके खाना खाएगा, या खाना मुंह में रहेगा उस समय पानी पिएगा. तो दीज आर द सिचुएशंस वेयर चोकिंग कैन हैपन, राइट. आपके फूड पाइप में, आई मीन आपके पास दो, हाँ, हर आदमी के पास दो पाइप होगा, राइट. एक फुट पाइप है, एक विंड पाइप है गले में, राइट. तो फुट पाइप में खाना जाना है, और विंड पाइप में हमारा हवा जाना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या हो जाता है चोकिंग पे, तो व्हाट हैपेंस इज, आपके विंड पाइप में खाना चले जाता है, एंड जाके वो बंद हो जाएगा. जी, अगर एक बार ऐसे ऐसे खाना अंदर चला गया, तो हम क्या करते हैं करके हम उसको सबको चोक करके हमने खुद बाहर ले लेते हैं, वी विल कफ, है ना. मगर ये क्या होगा, द एंटायर विंड पाइप इज ब्लॉक बाय द फुट पाइप. तो ऐसे पूरे ब्लॉक हो जाएगा, सो नो एयर विल गो इन, एंड उसकी वजह से आदमी जाता है, द पर्सन विल डाई विद इन अ मिनट, क्योंकि ऑक्सीजन डेड होएगा, ब्रेन डेड होगा. सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस. So these are the common situations. Any questions till now? कोई क्वेश्चन है? सो क्वेश्चन नहीं है तो नो इशू, आई जस्ट Sir, कंटिन्यू. अगर I क्वेश्चन है think तो फील फ्री. I think Bhakti raised some questions like heart stroke होने से क्या करना है, और सीताराम also हाँ, वही raised अभी एक एक को देखेंगे. yes yes. You will see each one of these things. ये कॉमन जो भी है, ये कैसे हो रहा है, क्या करना है, वो सभी हम देखेंगे. We'll see one. So first and foremost thing is,
व्हाट टू डू इन केस ऑफ अ ब्लीडिंग? सबसे पहले जो भी खून आने वाले जैसे भी आपकी चोट है उस पे डायरेक्ट प्रेशर लगा के उसको बंद कर, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो कैसे प्रेशर दिया जाएगा? यू शुड अप्लाई ए क्लीन, आप पहले उसको साफ करना, रनिंग वाटर से पहले साफ करके, देन उसको क्लीन बैंडेज या क्लॉथ रख के उसको एक बार पूरा सफाई करना है उस चोट एरिया को। देन यू नीड टू अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर, फिर आप चोट बंद करके उसको टाई मार के उसको ले जाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, व्हेन पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज ब्लीडिंग, उस बॉडी पार्ट को एकदम ऊपर अटैच करना है। अगर हाथ में हो रहा है तो हाथ ऊपर कर लेना है, पैर में कोई चोट हो रहा है तो पैर को ऊपर करना है, आदमी को लाई डाउन करके उनका पैर ऊपर करना है, सो दैट जो ब्लड लॉस होगा उसको हम कम कर सकते हैं, राइट? ये सभी कब करना है? आप एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम को कॉल में बुला के while they come, उन लोग आते समय यू शुड डू ऑल दिस, सो दैट उन लोग आने के पहले ही आप एक बार उनके सारे ट्रीटमेंट हो ही जाए आपकी तरफ से। दैट इज दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। डायरेक्ट प्रेशर है ना, तो उनके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर, उनके एरिया को क्लीन करना है, एलिवेट करना है, ऊपर खींच के रखना है, एंड देन बुला लेना है जो आदमी है प्रोफेशनली मेडिकल हेल्प। दिस इज फॉर ब्लीडिंग। एंड नेक्स्ट विल बी फॉर बर्न्स। बर्न्स होने से मुझे यही एक्चुअली कार्टून याद आया था, सो इसीलिए मैंने इसको बताया। So even a fire burn can be dealt with, electrical burns are there, and then chemical burns are there. तो मेजरली burns जो है ये तीन के वजह से होगा। फायर बर्न जो है किसी हालत से भी हो सकता है, इधर कैन बी इंटरनल फायर, एक्सटर्नल फायर, क्रैकर्स, है ना, या इवन फॉर एग्जाम्पल हमने कोई हॉट सरफेस पर टच कर लिया, सो दैट इज ऑल्सो ए फायर, है ना। कोई गरम गरम कपड़ा है, सॉरी गरम कपड़ा नहीं है, गरम पदार्थ है, उसको कोई टच कर लिया तो उनके वजह से जो चोट होगा वो भी बर्न्स है ड्यू टू फायर, है ना। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल के वजह से जो बर्न्स हो रहा है, इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश करके एक फिनोमिना है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। तो व्हाट इज दैट इज, जो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल पैनल होगा उसको मेटल पार्ट के वजह से एनर्जाइज रहते समय कोई टच कर लिया तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम द योर मेन पैनल टू योर मेटल कंडक्टर विच यू हैव टच्ड। तो ऐसे जंप होते समय इट विल क्रिएट एन आर्क, है ना। वो आर्क इतने टेम्परेचर पे आएगा, लाइक योर इट विल हैव अ बर्निंग एरिया ऑफ मोर देन 30 फीट, और वहां पे टेम्परेचर रहेगा 1500 डिग्री सी। तो इतना टेम्परेचर में अगर मानिए आपने कोई प्रोटेक्टिव सूट नहीं पहनेंगे, सो यू विल डेफिनेटली सफर विद एंड इलेक्ट्रिकल बर्न्स। इधर फर्स्ट डिग्री होगा, सेकंड डिग्री होगा, मोस्टली थर्ड डिग्री होगा। यू नो, थर्ड डिग्री वाले बर्न्स अगर हो गया तो उनको बचाना बहुत बहुत समय कम, एंड देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग अ थर्ड डिग्री बर्न विक्टिम। तो ओके, एंड नेक्स्ट केमिकल बर्न्स आर देयर। केमिकल बोलने से हमारे पास एसिड है और बेस भी है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो मतलब pH 1, pH 1 is the most concentrated acid, pH 14 is the most concentrated base। तो जो भी एलिमेंट है आपके बेर हाथों में किसी आदमी को पड़ गया, सो दैट कैन कॉज बर्न्स। तो कुछ केमिकल को पानी रख के साफ कर सकते हैं बर्न एरिया पे, कुछ केमिकल को दूसरे कोई एलिमेंट को रख के साफ करना है। सो ऐसा फर्स्ट एड है, क्या एलिमेंट गिरा है उस एलिमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करके कूलिंग एलिमेंट करना है करके भी पता होना जरूरी है। अदरवाइज आप मिसप्लेस कर लिया, when you are using a wrong cooling element, the reaction can be devastating। वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कूलिंग एलिमेंट ध्यान रखना जरूरी है, एंड ऑलवेज कवर विथ अ नॉन स्टिक ड्रेसिंग। तो नॉन स्टिक ड्रेसिंग मतलब वो उस बर्न एरिया पे आप जो चिपकने वाले टेप वगैरह कुछ नहीं मारना है। नॉर्मली वहां पे बैंडेज रखेंगे तो भी वो चिपकता है ना, इवन सॉफ्ट कॉटन रखने से चिपकता है, तो इसलिए सॉफ्ट कॉटन वगैरह नहीं रखना चाहिए। ओनली द एयर ब्रीदिंग कॉटन, वो जो बैंडेजेस होते हैं वही रखना है। सो दैट इज ऑल। एंड डू नॉट अप्लाई आइस, बटर और ऑइलमेंट्स। तो ये क्या है आपको, सो दिस इज मेजरली टेलिंग अबाउट क्या एलिमेंट के वजह से बर्न्स हुआ है
उस एलिमेंट का कूलिंग एलिमेंट यूज करेंगे। दैट इज द थिंग फॉर So severe burns. So severe burn होने से either it can be burn second degree or third degree. First degree burn उतना नहीं है. So what is meant by this first degree? एक simple example मैं दे देता हूँ. हम सभी कैंडल देखे होंगे, right? When you light a candle, है ना? उस कैंडल के टॉप फ्लेम पे आप अगर 1 सेकेंड आपके उंगली रख सकते हैं, तो हाउ मच पेन दैट यू कैन एंटर ऑन दैट पर्टिकुलर flame touched area for 1 second is what we call as first degree burn. Very simple. कैंडल जलाइए, अगर आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेफिनेटली इसको ट्राई कराइए, है ना, दिस डेफिनेटली नॉट ट्राइएबल एट होम, बट व्हाट यू कैन इमेजिन इज व्हाट आई एम ट्राइंग। कैंडल जलाइए, 1 सेकेंड के लिए आप आपका उंगली को आग के ऊपर रखेंगे, जस्ट टचिंग द फ्लेम, तो 1 सेकेंड का जितना चोट लगेगा आपके फिंगर में, so that we call it as a first degree burn. Second degree and third degree are like power to those pain and also आपके पूरे शरीर भी जल जाएगा, so उतना effective. So this is for burns. Next जो है fracture. Fracture होने से क्या है? First of all, जिसके भी fracture हो गया है, वो एरिया पहले बहुत बड़ा, like for example it will inflammate, है ना, बहुत बड़ा होगा, वहां पे बहुत बड़े एक लंप जैसे हो सकता है। सो एंड इमेंस पेन होगा विक्टिम को, तब भी पता चलना है कि इनको फ्रैक्चर, और अगर फ्रैक्चर नहीं है तो भी विक्टिम के पेन अगर ज्यादा हो रहा है तब भी हो, यू कैन डाउट इट एज अ फ्रैक्चर एंड यू कैन टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। फ्रैक्चर हो या ना हो, किसी को भी फ्रैक्चर हो गया या गिरने की वजह से कुछ चोट हुआ, देन यू डीम इट एज अ फ्रैक्चर। आप फ्रैक्चर है करके उसको सोच लीजिए एंड फ्रैक्चर के हिसाब से उनको ले जाइए, सो दैट इन केस अगर फ्रैक्चर है सो इट कैन बी सॉल्व करेक्टली, इन केस फ्रैक्चर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So that is the main thing. So immobilize the affected limb or any part of the fractured bone area. Okay. Second thing, most important, okay, you are not a physiotherapist. If you are a certified physiotherapist, then you can do realignment of the bone. Otherwise, don't do it. ये इधर उधर ही है ना, हम थोड़ा निकाल के इसको ऐसे सही करेंगे करके मत कराइए। दैट इज द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ सर्जन, आपके नहीं है। सो डू नॉट अटेम्प्ट टू रियलाइन द बोन, जैसा है वैसे ही ले जाइए। अगर हो सकता है तो उनको सीधे कराइए, और आई मीन सीधे करना कोशिश मत कराइए, उनको इमोबिलाइज कराइए। इमोबिलाइज, अगर मानिए जैसे फ्रैक्चर हो गया वैसे ही ना हिलाने की वजह से उनको ले जाइए, दैट्स इट। अगर अप्लाई स्प्लिट, स्प्लिट मतलब जो नीचे मैंने दिया है यही है, कवर्स, होल्डिंग एरियाज, जो पुत्तूर में हमको पुत्तूर एरिया पता है ना, तेलुगु आई मीन आंध्रा में, so there they will do for fractures and all, they will fully put the dough shaped cover for the entire fracture area, right? So likewise, this is the modern application, it's called a splinter. With the velcro and all, you can easily remove and you can carry it around very easily. Okay? And last but not least, again call for medical preservations. Right? Next thing is choking. Choking होने से very simple है, so I have exactly told you what is choking. Choking क्या होगा पता नहीं। तो फुट पाइप में, विंड पाइप में फुट पार्टिकल जाके पूरे जाम कर लेगा, सो दैट हवा हम श्वास नहीं ले सकते हैं, तो उनकी वजह से आदमी मर जाता है। ओके, सो दैट इज चोकिंग। तो ये चोकिंग को क्या करना है, इसके लिए एक मैन्यूवर है, मतलब एक तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं हेमलिक मैन्यूवर। क्या कर लेना है, ऐसे नीचे दिखा हुआ जैसे आपके दोनों हाथ बराबर, आप पीछे रहना है, जिसको विक्टिम है वो आपके आगे में रख देना है ना, फेसिंग हिज बैक, राइट, और आपके दो हाथ उनके चेस्ट के सेंटर पे थोड़ा नीचे रहना है, आई मीन जस्ट अबव द स्टमक एंड टचिंग, बराबर टचिंग द हार्ट, और फिस्ट पोजीशन ऐसे रखना है, एंड रखने के बाद आप सीपीआर देना है। ये हम रिवर्स सीपीआर भी बोल सकते हैं कभी कभी, बिकॉज सीपीआर जो है हम ऊपर से नीचे दबाएंगे, ये
आपके तरफ दबाएंगे, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो बी टोल्ड एज रिवर्स सीपीआर। तो मेजरली ऐसे करने से जो भी चोक पार्टिकल है लंग्स में जितने हवा होगा, आप ऐसे दबाने से जितने हवा में लंग्स होगा ना, वो कंप्रेस होके उस फुट पार्टिकल को ऊपर उड़ा देता है, सो दैट द जैम इज क्लियर एंड चोकिंग इज क्लियर। अच्छा, चोकिंग को क्लियर जल्दी करेंगे तो क्या होगा? तो दैट इज वन थिंग। पहले चोक हो रहा है करके एक आदमी ने बता दिया, सो यू शुड नॉट थिंक क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो टाइम चला गया एंड द पर्सन विल डाई। तो आपने तुरंत इसको करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स फॉर अ चोकिंग फर्स्ट एड। ये देने के बाद भी वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो सकता है, या उनको कोई ऐसे ही कैन हैव लाइक इरिटेशन इन हिज थ्रोट, वो सभी हो सकता है। दैट आर नॉर्मल, दैट वो प्रोफेशनल आदमी ने आके इमरजेंसी कंडीशन पे दे सकते हैं, बट इमीडिएटली दिस गाय शुड बी क्लियर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ट अटैक। अच्छा, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हार्ट अटैक आना रीजंस बहुत है ना। सबसे सबसे पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब क्या है? आपके जैसे स्ट्रोक ब्रेन का जो जाने वाले ब्लड वेसल में ब्लॉक होगा एंड इट कॉजेज स्ट्रोक, ऐसे हार्ट पंप होने के लिए जो जाएगा ब्लड वेसल जो है, तो उस ब्लड वेसल में अगर ब्लॉक होगा तो दैट विल कॉज हार्ट अटैक। हार्ट पंपिंग के लिए जितना पंप करने का एनर्जी देने वाले ब्लड नहीं आएगा, तो उनके वजह से हार्ट रुकता है, एंड दैट वी कॉल इट एज, राइट। ओके, सो सबसे पहले हार्ट अटैक होने से मेजर ट्रीटमेंट है सीपीआर, है ना। तो इमीडिएटली सीपीआर देना जरूरी है। तो सीपीआर देने से पहले ही इमरजेंसी बराबर टीम को कॉल कर लेना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन जो विक्टिम है उनको डराना नहीं है। उनको डराना नहीं है। बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे, ट्रेन में किसी को हार्ट अटैक आ गया, है ना, हीरो ने जाके कोई एक जो नाम ही नहीं पता है मगर वो जाके मैंने हार्ट अटैक के लिए एक टैबलेट ले आ गया करके देगा, फिर वो बोलेगा वो टैबलेट एस्पिरिन है। कुछ नहीं। एस्पिरिन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू हार्ट अटैक, बिकॉज वो क्या करता है, पेशेंट को बिलीव में, आई मीन उनके उनको खुद सोचने लगता है कि हाँ मैं अभी कुछ मेडिसिन खा लिया, मैं अभी बच जाऊँ। तो बिकॉज इट्स ऑल आर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, साइकोलॉजिकली वो आदमी को मदद करता है इन रेस्टोरिंग द हार्ट अटैक कंडीशन। नेक्स्ट मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब तक मेडिकल आदमी आने के वजह समय तक अगर मानिए पल्स नहीं है, प्लीज नोट डाउन, CPR to be done only when the pulse is not there. पल्स रहते समय आप करेंगे, then it is not good. Okay, it will choke, it will give pressure on your heart. Okay, on the victim's heart. So pulse नहीं है, then you should do CPR till the pulse is coming. Okay, तो वो भी कैसा है, when you have started immediately आप करते ही रहना है till the medical team comes. Okay, so that is also an important thing. तो क्या है हम बात कराएंगे। नेक्स्ट जो है फर्स्ट एड फॉर स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है जैसे मैं बोला था, ब्रेन को जो जाने वाले जो हमारा ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल में अगर कोई पार्टिकल आके ब्लॉक हो गया, सो दैट कॉजेज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक को सॉल्व करने के लिए 4 सिंपल फास्ट मेथड है। फर्स्ट इज फेस ड्रूपिंग। फेस से पूरा सलेवा बाहर आएगा, कहीं एक साइड के आएगा या 2 साइड से भी आ सकता है। नेक्स्ट इज आर्म वीकनेस। किसी एक साइड का, पूरे लेफ्ट साइड का पूरा वीक हो सकता है, आर्म ऐसे, उनके हाथ थोड़ा ऐसे पीछे जा सकता है, राइट, या दोनों साइड भी हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पीच डिफिकल्टी। वो बात करता है, करके बात करता है, मगर हमको बराबर वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उनके माउथ का जो मसल है वो भी is not responding well due to the brain blockage. Okay. Next time call emergency services. उनको भी बुला देना। Okay. So इसके लिए क्या कर लेना है, स्ट्रोक वगैरह के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उन जो आदमी है उनको हम शांत से बैठने के लिए बोलना है। इफ ही कैन सिट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, चेयर में नहीं बैठाना है, नीचे बैठाना है। ओके,
और नीचे बिठाने के बाद में भी उनको अगर ऐसे कुछ लगता है, देन व्हाट इट शुड बी, उनको पूरे लाई डाउन कर लेना है, एंड विथ हिज आईज, विथ बोथ हिज लेग्स एंड आर्म्स टू हिज बॉडी, एक साथ पकड़ के रखना है, एंड नो गैप्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ह्यूमन बॉडी टू बिहेव इट अराउंड, है ना। क्योंकि स्ट्रोक होते समय एक एक शरीर थोड़ा एक एक साइड पे खींचता है। फॉर एग्जाम्पल लेग विल गो टू द वन साइड, एक हाथ एक साइड पे जाएगा, तो उन सब को बुला के आई मीन खींच के बॉडी के साइड पे रखना है टिल द मेडिकल कम्स। तो ये सिम्टम्स है, फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, टाइम टू कॉल, आई मीन ये तीनों पहला जो है सिम्टम्स है, ये देखने से आपको लग जाएगा कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है। स्ट्रोक के लिए आप कुछ ऐसे पोजीशन का ही फर्स्ट एड दे सकते हैं टिल इमरजेंसी का प्रोफेशनल मेडिकल इमरजेंसी कम्स। अदरवाइज आप ऐसे कोई सीपीआर जैसे फर्स्ट एडिंग कुछ नहीं दे सकते, बिकॉज स्ट्रोक इज समथिंग ओनली द प्रोफेशनल मेडिकल टीम कैन हैंडल। अच्छा, ये सभी कॉमन वाला हो गया। अभी जो बात आएगा फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए। सो देर आर लाइक लीगल नोटिफिकेशंस भी है, हमारे NABH सर्टिफाइड नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल बोर्ड, NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। तो उस हॉस्पिटल्स में जैसे जो फर्स्ट एड ट्रेन्ड फर्स्ट एडर्स होगा, उनके लिए क्या क्या फर्स्ट एड किट मिनिमम रहना है करके भी बहुत सारे चीज बता हुआ है। एंड बेस्ड ऑन दैट द minimum things that are required is first of all sterile gauze and bandages, फिर adhesive tape रहना है, antiseptic wipes रहना है, gloves रहना है, scissor and tweezers, और CPR मास्क, इमरजेंसी ब्लैंकेट, है ना, अगर हो सकता है जो नॉर्मल वाली स्ट्रेचर्स या व्हील चेयर्स, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे चीज है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द वर्क एक्सपोजर। जो फर्स्ट एडर किस वर्क में एक्सपोज हो रहे हैं, किस आदमी को किस तरीके का विक्टिम्स उनको आ ही जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, तो बेस्ड ऑन दैट थिंग्स द मिनिमम फर्स्ट एड किट एसेंशियल्स कैन बी प्रोवाइड। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो अभी इट कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, सीपीआर। तो सीपीआर क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेसस्टिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि रुका हुआ हार्ट को आप दबा दबा के आप उसको चालू कर, तो दैट इज अ सिंपल मीनिंग फॉर इट। तो कैसे करना है? तो आप इस वीडियो में जैसे देखते हैं, है ना, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक हाथ, पूरे हाथ आपके दोनों निप्पल के सेंटर में, है ना, दोनों निप्पल के सेंटर में पहले एक हाथ रखना है, उसके ऊपर एक हाथ रख के ऐसे जैसे पकड़ा है, दो हाथ को भी सेम तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आप कितना अंदर पुश कर, तो दैट इज वेयर द इफेक्टिवनेस कम्स, और कितने फास्ट कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स 1 मिनट पे, अगर वो अडल्ट है तो 30 बार प्रेस करना है, मतलब 2 सेकंड के लिए एक प्रेस ना, एक प्रेस, दो, एक बार दबाना है और हाथ उठाना है, दबाना है, हाथ उठाना है। सो इट विल बी लाइक यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग इट, 30 कंप्रेशंस इन अ मिनट, है ना। और 2 ब्रेथ्स भी अपने देना जरूरी है। ब्रेथ देते समय उनके गला को सीधे रखना है, सो दैट आप उनके सर को, जो विक्टिम है उनके सर को सीधे पीछे ऐसे खींच सकते हैं, खींचने के वजह से गला सीधे होगा, एंड यू कैन गिव योर रेस्क्यू ब्रेथ ऑन। नेक्स्ट में भी फॉर चिल्ड्रन, एक हाथ से कंप्रेशन देना है, 2 हाथ से नहीं है। अगर 2 हाथ से देंगे चिल्ड्रन को हार्ट में बहुत प्रेशर आएगा, दैट इज नॉट टेक्निक। एंड फॉर इन्फेंट्स ओनली 2 फिंगर्स फॉर कंप्रेशन, है ना, उतना ही प्रेशर हैंडल करेगा उनके हाथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब फर्स्ट सीपीआर जब करना है, जब पल्स मेजर नहीं हो रहा है, एंड इट इज टू बी डन टिल द पल्स इज कमिंग और टिल द प्रोफेशनल मेडिकल टीम इज कमिंग, राइट। सो इन दोनों में जो पहला है उसी समय तक करते रहना है आपने, एंड आप ऐसे दबा दबा के क्या होगा, विदाउट गैप आप ऐसे करते रहना है, सो दैट यू विल गेट टायर्ड इजीली। तो इसीलिए सीपीआर करते समय यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप पर्सन, है ना। आप
थोड़ा दबाने के बाद सेकंड immediately another person need to start. So that is how the CPR should be continuously being done so that एक आदमी को जल्दी बचा सके. वंस पल्स आ गया, पल्स आने से तुरंत रुकना है, वो भी आपने फील करना है दबाते समय. Okay? तो पल्स आने के बाद भी अगर करेगा ना, so that will cause pressure over the heart. So that it should happen. Continue till health collapse. So that's the most important. Next and most important thing, लीगल रिक्वायरमेंट में क्या बोला है. लीगल रिक्वायरमेंट मतलब इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट है ना, BOCW एक्ट भी है, रूल्स भी है. उन सब में ऐसे बोला है कि एक फर्स्ट एडर चाहिए हर 150 की, और उनके बारे में फर्स्ट एड किट में क्या क्या रहना चाहिए, एक फर्स्ट एडर क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, हाउ उनके ट्रेनिंग्स वगैरह होना चाहिए, ये सभी के बारे में फैक्ट्रीज एक्ट में बोला है. सो यू कैन रेफर दीज कोड्स and you can get back on those knowledge on what it has. And NFPA majorly deal करता है with respect to fire and electrical burns. और उनके लिए जो सर्टिफाइड फर्स्ट एडर है उन्होंने क्या करना है वो सभी इसी में बोला. लाइक फॉर फर्स्ट डिग्री बर्न्स क्या करना है, सेकंड डिग्री बर्न्स क्या करना है, थर्ड डिग्री बर्न्स क्या करना है. तो इलेक्ट्रिकल और फायर बर्न्स का क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके का ट्रीटमेंट किसको फर्स्ट एड में दिया जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग स्पोकन ऑन लीगल रिकॉर्ड. तो मेजरली ये क्या होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन, शायद इवन हमारा NABH हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, उन्होंने भी हो, या ऐसे कोई लीगल बॉडीज हो, उन सभी फर्स्ट एडर का क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, सभी बोला है. मगर बराबर फर्स्ट एडर उनके कॉम्पिटेंसी कोई एक सर्टिफाइंग एजेंसी के थ्रू ही मिलता है. तो the competencies of what the first aider is making the life saving moment. So that is the most important. अच्छा, मिस्टेक्स ऑन फर्स्ट एडिंग वो तो बहुत है ना, किस तरीके पे क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दिस विल डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल सेशन. So as this is only a theory class, तो इसमें हम practical session के बारे में नहीं बोला जाएगा because time constraint भी है and other things are also there. So majorly I will conclude with 3 points. One is आप अगर पूरे trained हो both in theoretical as well as practical, then only you are a competent first aider. आप एक competent first aider हो, then only you do first aid. Otherwise, please keep quiet. Do not give your opinions to any of the first aider who is doing it. Okay, so this is the first and foremost thing. As a general public also, this we need to keep in mind. If you are competent, you go and do. Otherwise, keep yourself away from it. Second, most important thing, wrong first aid can give negative results. Negative result मतलब क्या है, वो आदमी मर जाए. Your main objective of preserve life is gone. Okay. So that is not to be done. And last most important thing, have practical training sessions frequently. ये confidence gaining भी है, and there are like many new certain discoveries of equipment advances वो भी है. For example, अभी CPR इतने दबा के देना जरूरी नहीं है. अगर मानिए आपके पास AED करके एक डिवाइस है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफाइब्रिलेटर, वो AED डिवाइस आ गया, so you can just paste two sensors here and there at the side and the top of your chest, है ना. उसको एक बार बटन दबाने से वो जैसे शॉक ट्रीटमेंट देता है हार्ट अटैक पे, तो वो खुद ऐसे खुद देता है. So this is an equipment advancement. So ऐसे जैसे कोई changes in medical practices, advancement in medical equipment or any bringing up of a new equipment, ऐसे कभी situation पे आप अपने को भी confidence उसी पे बढ़ाने के लिए आप हमेशा अपने practical session पे update रखना बहुत बहुत जरूरी है. And that you need to do irrespective आप एक trained first aider हो या ना हो. So that is the most important thing. So with this, I think I'm stopping the session. Any questions? Please ask. Sir, how to know he need a CPR?
how to know he need a CPR? The most important question. Right. So मानिए एक आदमी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है, so can you tell me the symptoms of an heart attack? उनको सर देखने से हमको क्या क्या चीज समझ में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल स्वेट अ लॉट, है ना. जो पर्सन विक्टिम अभी हार्ट अटैक सफर कर रहे हैं, ही विल स्वेट अ लॉट, है ना. he will have disbalances, he will not be steady, he will be clumsy, है ना. और इधर उधर जाएगा, बराबर पकड़ नहीं पाएगा. जो चीज पकड़ना चाहते हैं, जो चीज बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोल पाएगा. he will look for where he can lie down immediately. ऐसे खुद देखता है ना. and sometimes the person can become unconscious also. And most importantly, heavy chest pain आएगा, and that also marks the upcoming heart attack. Any other questions? I think Rajkumar ji, I think there are no other questions. yes sir, बोलिए. Yeah, और कोई questions नहीं है तो shall we wind up the session? मैं एक बार बात करता हूँ. Yeah, अच्छा, अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चनरीज है फास्ट एड से रिलेटेड तो आप अभी कर सकते हैं, है ना. तो yeah, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? you can always contact me on 7010651652. I'm providing my number in the chat box. आप किसी Okay. हालत से भी किसी का जरूरत हो, you can definitely give a call. I'm ready to explain. सर काफी जन का इंक्वायरी था कि सर कुछ फास्ट एड का पीडीएफ वगैरह होगा तो आप दे देंगे, है ना. अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन पहले शेयर कर लेता हूँ, और फर्स्ट Okay. एड का कोई पीडीएफ है तो मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ. ओके ओके. और एक तो सर इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई 10 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस और आंसर, तो मुझे भेज दीजिएगा. मैं इनको एक गूगल मीट में एक असेसमेंट कर लूंगा. ओके, प्लीज गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ा Okay, करके okay. आपको भेजना है. ओके ओके. या सर एक क्वेश्चन था सर. जी बोलिए. सर अभी बेसिकली अभी हमारे यहाँ शुगर पेशेंट ज्यादा हैं, तो कभी शुगर लो हो जाने की वजह से और या कभी हाई हो जाने की वजह से उस टाइम हम लोग को क्या एक्शन लेना चाहिए था? शुगर हाई और लो होने की वजह से हम फर्स्ट एड कुछ नहीं करना है जी. दैट द प्रोफेशनल मेडिकल टीम कैन डू. बिकॉज शुगर लो होने से क्या है, द पर्सन में फील वेरी टायर्ड, है ना, वेरी लाइक एनर्जेटिक नहीं रहेगा. इट विल बी लाइक सोर थ्रोट, ही नीड सपोर्ट. जैसे डिहाइड्रेशन होता है ऐसे लो शुगर भी करा देता है, राइट. सो उनके लिए क्या है, आस्क हिम टू सिट कामली, जो भी विक्टिम है, and till the medical help comes, they will give and support all the things. And for high sugar content, तो उनके लिए कभी कभी ये करना चाहते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू इन्फेक्शंस, है ना. कभी कभी हाई शुगर होने से क्या है, पैर में बहुत सारे इन्फेक्शंस आते हैं और वो इन्फेक्शन कभी हील ही नहीं होता. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू हाई शुगर, हाई लेवल पीपल. तो वो इन्फेक्शन को जो भी अगर आप फर्स्ट एड कराएंगे, तो इट शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली, है ना. क्लीन करके बराबर उस वूंड हीलिंग के लिए आप मदद करना है. दैट इज द थिंग दैट यू कैन. सर कुछ टाइम के लिए कुछ लोग बोलता है होम रेमेडी यूज करने के लिए, वो क्या सही होता है या नहीं? सर होम रेमेडी इज अनदर साइंस विच वी विल नॉट टॉक नाउ, है ना. वो भी एक अलग से साइंस है, जैसे हमारे फिजियोथेरेपी जैसे. हाँ. तो इट इज हैविंग इफेक्ट्स आल्सो, बोथ गुड एज वेल एज बैड इफेक्ट्स. सो क्या यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, उस पर बराबर ध्यान रहने से डेफिनेटली गुड थिंग्स कैन कम. ओके सर. Thank you, sir. Thank you so much for Thank you, patiently sir. attending this call. Rajkumar ji, over to you. यस थैंक यू एवरीवन. एंड सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए. और मे बी ये सेशन सबको बहुत अच्छे से एक बेसिक नॉलेज था, सबको समझ में आया होगा. और इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डू और डोंट, दोनों ने क्लियर सर ने बता दिया. वी फिक्चोरियल बहुत स्मार्टली.
तो आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ क्वायरीज है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो सर अभी बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट एक असेसमेंट शीट हम गूगल शीट में भेजेंगे आप लोगों को, तो उसको भी आप आंसर कर दीजिएगा, जिससे होगा कि आपको एक एक्नॉलेजमेंट रहेगा। और इसमें एक चीज ध्यान देना है सबको, जिसको भी सर्टिफिकेशन चाहिए होगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, वो जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें उनको वही नाम रहेगा सर्टिफिकेशन में, जो आप जो फॉर्म फिल करेंगे वही नाम आपका सर्टिफिकेशन में रहेगा। तो ध्यान से अपना फॉर्म को फिल करिएगा। और ये फॉर्म को मैं रिलेटेड टू असेसमेंट शीट के साथ दे दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, पीडीएफ थोड़ा दिवा दीजिएगा सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। सर गुड नाइट सर।